सो स्टूडेंट्स, हमने टीआईआर पढ़ा है, उसके बारे में एप्लीकेशंस पढ़े थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक क्वेश्चन के फॉर्म में उस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे ताकि आप ये देख पाएँ कि क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक डेरिवेशन है, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसी को आप डेरिवेशन भी मान लेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको करेंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी होती है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होती है। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन होगा, सॉरी क्वेश्चन होगा, तो उससे आपको एक रिलेशन मिलेगा, एक फार्मूले जैसा मिल जाएगा। अब आप उसका यूज़ डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंडीशन एग्जैक्टली एक जैसी गिवन नहीं होती है क्वेश्चन में। तो आप ट्राई करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें और आप कंप्लीट करें अपना क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ टैंक। क्वेश्चन इज अ स्मॉल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, आप कोई भी लाइट सोर्स इमेजिन कर सकते हैं। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ टैंक, is placed at bottom of tank, okay, containing liquid to depth h centimeter, containing liquid to depth h centimeter, okay. What is the area of the surface of liquid through which light, so what is area of surface, what is area of surface of water through which light from bulb can emerge out, light from bulb can emerge out, okay. Refractive index of liquid is given, that is mu. Refractive index of liquid is mu. So this is the question, okay. You should note down this question, this is most important problem, so that I am writing here, okay. This one is very important question and repeated question in CBSE examination and many competitive exams. Only the values of the given, that is h and the refractive index, are different in different questions, but the question is very important, okay. So I am going to erase this question here and I will solve after erasing it, okay. So I hope you can note, pause your video and note it down. So I am going to draw a diagram and after that I will solve the this question for the area. You can see the most important point is, what is the area of the surface of water through which light from bulb can emerge out. What is meaning of this statement? So let's see. Now you should look at your question and I am going to explain the solution. So students, according to question, this one is a container. It contains some liquid of refractive index mu. The depth of this container is h. This depth is h, right? And some liquid is filled in this container.
Okay, now a bulb is placed here. Suppose this one is the source of light, this one is source of light S. Okay, now light ray travel in straight line like this. One of the light ray travel straight line like this. It will reach here. Okay, now other light ray also travel from this liquid to air. So suppose this light ray travel from this point like this, and if normal is here, this one is n and dash is normal, so it must bend away from the normal, because this medium, suppose this one is if air, so it is mu is equal to 1, and this one is mu2 is equal to mu. Okay, students, I am taking here mu1 is equal to 1 because in most of cases the question is given that this one is the liquid of refractive index mu and the outer atmosphere is air, because in practical aspect this condition is satisfied generally कि आप किसी कंटेनर में कोई लिक्विड वाटर, कोई ऑयल या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हो, बट सेकेंड जहाँ लिक्विड बाहर आती है, सॉरी लिक्विड से जो लाइट बाहर आती है वो तो जनरली एयर में ही है, या फिर जनरली मैक्सिमम केसेस में ये वाटर होगा और यहाँ पे एयर होगा. तो यहाँ पे म्यू1 की वैल्यू 1 ले ले रहे हैं हम, और म्यू2 को म्यू सपोज कर रहे हैं. यहाँ पे कोई अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा तो आप उसके लिए म्यू की वैल्यूज डिफरेंट करके सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जब लाइट रे आई तो इस पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और ये एंगल आर ये अवे चली गई. अब क्या होगा कि कोई और लाइट रे जो कि इधर आएगी वो क्रिटिकल एंगल पे आएगी. सपोज ये क्रिटिकल एंगल पे आती है अगर ये लाइट, तो क्या होता है, ये ऐसे नहीं जाके ये 90 पे चली जाती है ऐसे, ठीक है, और ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री आर. अब देखिए जितनी भी लाइट रे इस वाले एंगल से इधर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे एंगल आप यहाँ से बेंड करेंगे ये एंगल भी इंक्रीज होगा. ठीक है, आप यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब देखिए इसके बाद ये एंगल जरूर नॉर्मल से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये एंगल ग्रेटर देन सी हो जाएगा. तो जैसे ही ग्रेटर देन सी होगा लाइट रिटर्न बैक हो जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी. कौन कौन सी कंडीशंस, 2 कंडीशंस है. फर्स्ट लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही रही है. और दूसरी ये कि लाइट जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा. तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी और ये लाइट रे इसी मीडियम में रिटर्न होके वापस चली जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद की सारी लाइट रे इसी मीडियम में रहेंगी, कोई भी बाहर नहीं जाएगी. तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक की लाइट इधर जा सकती है, यही आपको यहाँ से मिलता है. ऐसे इस डायरेक्शन में भी होगा, इसकी इधर से भी लाइट रह जाएगी. अब अगर आप इमेजिन करें तो अगर ये सोर्स है तो लाइट यहाँ से हर डायरेक्शन में ऐसे चलती है, ठीक है. तो जब वो सभी डायरेक्शन में चलेगी तो वो क्या फॉर्म करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो उसका फॉर्मेशन होगा, जो उसकी ज्योमेट्री बनेगी, वो ज्योमेट्री कैसी बनेगी. तो वो ज्योमेट्री बनेगी, आपको दिखाते हैं कैसी बनेगी. तो आप देखेंगे वो बनेगा एक कोन ऐसे, ठीक है. देखिए अगर लाइट रे हर पॉइंट से चला, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स यस यहाँ पे है, तो लाइट रे यहाँ से सारी पॉसिबल डायरेक्शन में चलेगी, तो ऐसे चलेगी, ठीक है, एक कोन की तरह. लाइट सोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे लाइट सोर्स है और ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में चलेगा. तो ये सामने देखिए ये सर्कल दिखेगा ऐसे, और ये हो गया यहाँ पे होगा क्रिटिकल एंगल, ये हो गया सेंटर. अब ऐसे इस सेंटर से हर तरफ से, तो ये सर्कल जो है इसी एरिया से लाइट रे बाहर निकलेगी. इससे बाहर की लाइट जो होगी वो टोटली इंटरनली
अंदर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो ये वाला सर्कल है। इस सेंटर वाली जो लाइट है, इसके सेंटर पे ये वाली लाइट है, ये जो बाहर जा रही है, और इस वाले एज पे ये वाली लाइट है। ऐसे ही हर तरफ से होगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो इस टाइप की होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसा बनेगा कोन, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पे 2 डायमेंशनली दिखेगा आपको, बट एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सर्कल दिखेगा और ये लाइट ऐसे सोर्स से आ रही है, ऐसे ऐसे निकलेगी। इस सर्कल के बाहर की लाइट वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। यहाँ की लाइट इसके बाद की सारी इस मीडियम में वापस हो जाएंगी। मतलब यहाँ की जो लाइट रे है ऐसे जो चली वो वापस हो गई यहाँ पे, और इधर भी ऐसे जो चली वो वापस हो गई मीडियम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोन है, इसी फॉर्म का जो लाइट होगी, इसके अंदर पूरी लाइट फील्ड है, इसके अंदर से लाइट बाहर निकलेगी इतने एरिया से। तो ये एरिया जो होगा वो ये वाला पार्ट है। तो इट मीन्स कि आपको मिला यहाँ पे, अगर डायग्राम को थोड़ा सा अब चेक कर लें हमारा कितना डायग्राम की रिक्वायरमेंट है हमको। तो इन पार्ट्स को हम इरेज कर देते हैं। तो इसको फिर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर समझ में आए और फिर हम इजीली डिराइव कर लें फार्मूला अपना। तो ये देखिए इस टाइप का होगा। ये है कंटेनर, ठीक है, इसकी डेप्थ है यहाँ पे h, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, यहाँ से सोर्स है ये, यहाँ से कोई लाइट ऐसे स्ट्रेट चली गई, ठीक है। मान लीजिए कि ये है सरफेस, यहाँ पे एंगल ऑफ ये हो गया क्रिटिकल एंगल, यहाँ ये हो गया क्रिटिकल एंगल C, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री हो गया n डैश, ठीक है। अब ये एंगल C हुआ तो ये भी C होगा क्रिटिकल के इक्वल। ये हमारा होगा रेडियस, ऐसी लाइट इधर से भी चलेगी, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे चलेगा। तो ये आपका बन गया कोन। देखिए इसका रेडियस, तो सपोज ये है O, ये P, ये हो गया Q। तो रेडियस कितना हुआ? सो रेडियस ऑफ द सर्कल, जहां से कि ये लाइट रे बाहर निकलेगी, वो है P। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू PQ है, और इसकी वैल्यू सपोज कर लेते स्मॉल r के इक्वल है, ठीक है। तो एरिया, जिस एरिया से वो बाहर आएगा वो कितना होगा? एरिया होगा पाई r स्क्वायर। अब आपको लग रहा है यही आंसर है, हो गया आंसर। बट क्या हमको r पता है? कैसे पता करेंगे r? हमको ये पता है कि इस कंटेनर का डेप्थ h है और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता है। तो हमको पता चल गया कि एरिया पाई r स्क्वायर है। अब पाई के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है, बट r के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हम चाहे तो r की वैल्यू h और म्यू के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि r की वैल्यू h और म्यू के फॉर्म में क्या आ सकती है। तो उसके लिए ये ज्योमेट्री यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल जो है वो है C और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप वैसे राइट एंगल ट्रायंगल OPQ यूज कर लीजिए। सो इन ट्रायंगल OPQ लिख सकते हैं आप। इन ट्रायंगल OPQ इन ट्रायंगल OPQ क्या लिखें? देखिए इन ट्रायंगल OPQ हम लोग लिख सकते हैं साइन C की वैल्यू, साइन C इज इक्वल टू कितना होगा? या फिर हम लोग स्नेल्स लॉ पहले यूज कर लेते हैं। सो बाय स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं साइन C अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/μ। तो ये हो जाता है साइन C इज इक्वल टू 1/μ। ये तो हमको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको एच के फॉर्म में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में यूज करें, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, अगर हम लोग साइन सी की वैल्यू लिखे तो साइन सी कितना लिखेंगे, देखिए साइन सी को हम लोग लिख सकते हैं, ये एंगल हो गया 90, ठीक है। तो 90 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू ओ, इतना लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, पी क्यू ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। तो अब पी क्यू की वैल्यू हम लोग आर लिख रहे हैं और हमको क्यू ओ नहीं पता है, तो क्यू ओ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं। अभी इधर इरेज कर रहे हैं ताकि इसको प्रोसीड कर पाए आगे हम लोग। तो यहाँ तक आप नोट करिए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्यू ओ लिखते हैं, क्यू ओ कितना होगा, क्यू ओ हो जाएगा आपका आर बाई साइन सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मैं आर की वैल्यू लिखनी है, तो इसको मैं आर इज इक्वल टू ही लिखना चाहिए था। यहाँ पे लिखते हैं आर इज इक्वल टू क्यू ओ इंटू साइन सी, इतना लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्यू ओ देखते हैं कितना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप यूज कर सकते हैं रिलेशन क्यू ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, राइट। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर जो है वो है आर स्क्वायर, और ये कितना है एच स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू जो है क्यू ओ स्क्वायर की वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट, या फिर अगर इसको इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2, तो हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओ स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्यू ओ स्क्वायर की वैल्यू को यूज कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास साइन सी की वैल्यू 1/μ भी है, तो इसको भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू जो कि ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है इंटू साइन की वैल्यू यूज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/μ स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू स्क्वायर, इसको इधर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगी आपकी आर की वैल्यू। देखिए आर की वैल्यू अब एच और म्यू के फॉर्म में, एच नोन है और म्यू नोन है। तो अब आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो कि आपको पता करना है एक्चुअल क्वेश्चन में होगा पाई आर स्क्वायर, और आर अब अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं ये वाली। तो कितना होगा पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आप पता कर सकते हैं कि कितने एरिया से यहाँ से लाइट बाहर निकलती है। तो वो है पाई एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको डेप्थ पता है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो जो यहाँ इस लिक्विड से जो लाइट बाहर आएगी वो 2 पॉइंट पे, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है डेप्थ कितनी है और सेकेंड है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो इन दोनों बातों पे ये डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिराइव कर लीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर करिएगा सॉल्व। ओके, तो इसको रिवाइज करिए खुद से। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको दो टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं स्फेरिकल। पहला है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और सेकेंड है हमारा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दो हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कौन से सरफेस को कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा इसमें कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ये हो गया एक सरफेस हमारा, ठीक है, और सेकेंड इस टाइप का है, ये हो गया ए बी हो गया ये सपोज, और ये वाला इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये इस टाइप का है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दो सरफेसेस। तो यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका है, ये अंदर फील्ड होता है, ये पूरा पूरा ग्लास है। अगर ये ग्लास का मटेरियल है या फिर किसी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ये हो सकता है, ये अंदर फील्ड होता है ये पूरा पूरा मटेरियल, और बाहर इसके है एयर, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं हम लोग जो करते हैं। तो ये एयर है, यहाँ भी एयर है, ठीक है। इसके अंदर ये फील्ड है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू2 इसका भी है, सपोज इसका म्यू2 है, ठीक है, या फिर इसको म्यू2 डैश बोल देते हैं, इसको म्यू2 बोलते हैं। बाहर का दोनों का 1 1 ही है क्योंकि एयर है। तो अब इनमें से कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है? अगर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इधर से आप देखेंगे तो देखिए ये कन्वेक्स जैसा दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव दिखेगा, ये भी इधर से कन्वेक्स है इधर से कॉनकेव है। फिर कैसे डिसाइड करेंगे, किधर से देखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रही आपको तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो डेरिवेशन करना है वो कॉन्वेक्स के लिए करना है या कॉनकेव के लिए करना है। यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्फेरिकल सरफेस से करना है, और कौन सी स्फेरिकल सरफेस से करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो देखिए कन्वेक्स या कनकेव हम लोग इस बात से डिसाइड करते हैं कि जो रेयरर मीडियम है उधर से देखने पे ये कैसा दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये एयर की तरफ से देखने पे ये दिख रहा है कनकेव, तो ये है कनकेव। यहाँ पे एयर की तरफ से देखने पे ये लग रहा है कन्वेक्स, तो इसको कहेंगे कन्वेक्स। तो यहाँ पे इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये है टॉपिक। दो टाइप के कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस हैं, सॉरी स्फेरिकल सरफेसेस दो टाइप के हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कन्वेक्स, सेकेंड है कनकेव। इनमें से कन्वेक्स ये वाला है क्योंकि एयर की तरफ से देखने पे ये कन्वेक्स दिखता है, कनकेव ये वाला है क्योंकि एयर की तरफ से देखने पे ये कनकेव दिखता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसको कनकेव या कन्वेक्स कहेंगे, राइट। तो अब चलते हैं टॉपिक कैसे स्टार्ट होगा, कौन कौन से डेरिवेशंस हैं, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे।
बट उससे पहले देखेंगे कि हम लोग स्फेरिकल सर्फेसेज में क्या चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि अगर हम समझ जाएं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो वो चीज़ों समझने के लिए चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं। किसी एक सरफेस के लिए चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होगी। फर्स्ट है पोल, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ अपर्चर एंड फिर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये है थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है 4 पॉइंट। इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो सरफेस है, अगर यहाँ पे डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दे और ये कम्प्लीटली फील्ड पार्ट है, तो आप तो समझ गए कि ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है कनकेव। किसी भी एक के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो सरफेस है इसको वाई डैश पी वाई बोलते हैं। इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है इसी को बोलते हैं पोल। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर मोस्ट, एक्चुअल में ये बाउल जैसा होता है, ऐसे होता है। ये 2 डायमेंशन में आपको सर्कल का पार्ट दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में स्फीयर का पार्ट होगा। ये ऐसे दिखेगा, ये फील्ड होगा, यहाँ पे सेंटर में यहाँ कहीं पोल होगा। तो ये ऐसे है, ये यहाँ पे देखें तो ये ऐसे है ये, ठीक है। ये आपकी तरफ ऐसे, एक बाउल को अपने सामने ऐसे रखो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा ये पोल है, ठीक है। अब अगर इस स्फीयर को कंप्लीट करें हम ऐसे, ये देखिए स्फीयर इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा। अगर कन्वेक्स होता तो उधर कंप्लीट होता, तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ये स्फीयर। तो इसका जहाँ पे इसका सेंटर आता इस स्फीयर का, उसी को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। तो इस स्फीयर को कंप्लीट करते हैं, इसका सेंटर जो होता वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। फिर पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज हैं उसको पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे 2 टाइप की स्फेरिकल सरफेसेज आपके सिलेबस में, फर्स्ट है कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सरफेस कन्वेक्स है या कनकेव है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेयरर मीडियम की तरफ से देखना होगा। रेयरर मीडियम की तरफ से देखने पे अगर वो कन्वेक्स दिखेगा तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे, अगर वो कनकेव दिखेगा तो कनकेव बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको कभी भी हो सकती है। डेंसर मीडियम की तरफ से देखने पे जो सरफेस कन्वेक्स होगा वो रेयरर की तरफ से देखने पे कनकेव हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको ऑलवेज रेयरर मीडियम की तरफ से ही देखना है। और रेयरर मीडियम की तरफ से देखने पे ये देखिए कनकेव दिख रहा है, इसको कनकेव बोलेंगे हम। तो ये कनकेव सरफेस हो गया। अब इसके लिए इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा पोल, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है वो हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इतनी चीज़ें आप जान गए हैं, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है मिरर से। मिरर के लिए हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, तो वहाँ पे वो वीडियो देखा था आपने। तो ये सभी चीज़ें वहीं से रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें रिफ्लेक्शन होगा और मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमें पहले साइन कन्वेंशन जानना होगा, और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे।
ओके, तो अब इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है।